Yes, students, good morning and a very warm welcome to today's English class. I hope you all are safe and fine. So, now coming back to the important thing that is studies, we just want to say that in our yesterday's class, what we started, हमने start किया था पढ़ना glimpses of past, right? Chapter number 3 from your book Honeydew. The name of the chapter was Glimpses of the Past. इसके अंदर हमने क्या देखा था? Glimpse, glimpses we can say एक image हमारे सामने. So pictorial glimpses, as you can see in the chapters, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ pictures दिए हैं, and through the pictures many things are explained. Okay, so these are some pictorial glimpses from the history of our country, that is from the year 1757 to 1857, and these pictures and along with them the speech bubbles दिए हुए हैं, they are going to clarify our understanding of the conditions that ultimately is going to lead to the event known as the First War of Independence 1857. सो अल्टीमेटली हमने कौन कौन से ग्लिम्पसेस देखे थे? येस्टरडे हमने 3 ग्लिम्पसेस देखे थे. वन वाज ऑफ द मार्टियर्स, जिसके अंदर मेन एलिमेंट क्या था? लता मंगेशकर जी वो सिंगिंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग एट अ फंक्शन इन दिल्ली, एंड मेनी freedom fighters are shown in there and many political leaders are also sitting along with Lata ji over there. ठीक है, लता मंगेशकर जी, who she is the best and the most renowned and the famous playback singer जो हमारी हैं हिंदुस्तान की. शी रिप्रेजेंट्स हर कंट्री ऑल ओवर द यूनिवर्स वी कैन से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमने ग्लिम्स किया था वो हमने कौन सा किया था? इट वाज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉन्क्वेस्ट था उसके बारे में हमने पढ़ा था. नाउ हाउ द मर्चेंट्स केम एंड हाउ द मर्चेंट्स टॉर्चर्ड आवर इंडियन पीपल एंड व्हाट फाइनली there was no one, कोई ऐसा brave fighter नहीं था who can take a upstart against these British people, but then a very brave Tipu Sultan of Mysore came and he fight with Britishers till he died fighting. Now on these conquests there were different kind of views of the people. Now some people say that thank God now there is peace in the country, now no more looting by the thugs will be done. The next one says that it is God who sent these Britishers to help us. And the third one says that our destiny is linked with them, कि हमारी जो destiny है ना वो इन्हीं के साथ linked है. But as the two sides of the coin, there is other thing also. The next one, what does they say? They say the white man has killed or dethroned our kings. कुछ लोगों के views अलग भी थे. The men are saying कि जो white people थे ना, they have done what? They have dethroned our kings or they have killed our kings. Now next they say now we have become slaves of foreigners. और अभी हम क्या हो गए हैं? फॉरेनर के स्लेव्स बन गए हैं. वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ आवर फॉरेनर्स. एंड द नेक्स्ट इज सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड. कुछ किंग्स अच्छे नहीं थे बट आफ्टर ऑल कुछ भी कहो दे वर ऑफ आवर लैंड. वो थे तो हमारे ही सरजमी के लोग ना. सो दैट इज बैड. सो दिस वे यहाँ पे भी क्या था? यहाँ पे देयर वर टू काइंड ऑफ व्यूज फ्रॉम द पीपल. ओके, सो नेक्स्ट जो थर्ड हमने जो ग्लिम्स पढ़ी थी इट वाज अबाउट द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल का जो टॉर्चर था उसके बारे में हमने देखी. दैट ब्रिटिश रूल ना कहीं कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था? was preaching some very bad ideas to the people. And what were those ideas which the British rule was preaching? That कोई भी जो इन सीज को क्रॉस करेगा is going to lose the religion and all the misery in the world is due to the women, these kind of things. And now they say कि अब हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा. Now what we should do? Now they have started torturing the people. Now some British official says कि ये जो Indians हैं they are neither to be trusted, neither they are honest. Now Indian people इन्हें serve करते थे and they used to say what? That yes my lord you are right but at least I am honest. Now the next एक picture यहाँ दिया गया था which was being shown that Britishers were taking away the crops from a poor farmer, and the farmer there said that you are taking all my crops, and the Britisher was saying what? That yes I am taking all your crops but still you know what? You are still having arrears. That is you still have left something to pay to me, and in the next week if you do not clear your dues so I am going to send you to jail. And the next is now Britisher says now we have to invent some more methods to earn more profits. Now they say कि जो हमारे goods जो इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया के अंदर आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, they should not have any import duties on that.
तो इम्पोर्ट ड्यूटीज के बिना लाएंगे, यहाँ पे महंगा महंगा बेचेंगे एंड वी आर ऑल टुगेदर गोइंग टू अर्न अ लॉट. नाउ ऐसा हुआ. नाउ अदर वर सेइंग यस दैट इट्स अ गुड आइडिया. नाउ दिस वेस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दीज लॉज बिगेन टू क्रिपल द इंडियन इंडस्ट्रीज. इन्होंने हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को क्रिपल करना शुरू कर दिया. क्रिपल मीन्स अपंग बनाना, उसे खराब करना शुरू कर दिया. नाउ these things happened and because of the famines जो follow हुए इसके बाद में between 1822 से 1836 तक at least 15 lakh Indians जो थे they just died of the starvation, भूख के कारण मर गए. ब्रिटिश पॉलिसीज ने रूइन कर दिया द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस. उनके बिजनेस को और हमारे एक्सपर्ट आर्टिसंस को दे जस्ट डिड व्हाट, दे जस्ट रूइंड इट, फिनिश कर दिया. यहाँ देख पा रहे हो ना इन दिस पिक्चर, यू कैन सी अ मैन, यू कैन सी अ चाइल्ड एंड वुमेन. ये कैसे गरीबी के मारे हुए लग रहे हैं, है ना. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिश पॉलिसीज के इनके साथ में ऐसा हुआ. ठीक है. नाउ we have to start from this part, that is from the fourth glimpse, that is Raja Ram Mohan Roy. यहाँ पे लिखा है राम मोहन रॉय but actually this is राजा राम मोहन रॉय, है ना. You all knew about him. आपने जीके में कहीं पे इनकी डिटेल नहीं पता तो एटलीस्ट इनका नाम तो सुना होगा सबने. I hope all of you must have heard राजा राम मोहन रॉय's name. So ये जो glimpse है, the year जिसका ये glimpse है is from 1772 to 1833. कहाँ से? 1772 से लेके 1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Now Ram Mohan Roy says what? That a learned man है from Bengal who understood. Ram Mohan Roy was a learned man from Bengal and he understood what was wrong with the country. कि country के साथ क्या गलत हो रहा है, वो समझ रहे थे इस चीज को. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstition have been ruining us. Now he says, now let us not despise ourselves. Now he says, वो क्या कहते हैं राम मोहन रॉय कि ना हमें अपने आप को डिस्पाइज नहीं करना चाहिए. दैट इज हमें अपने आप की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. क्यों? हमारी जो ट्रेडिशनल एंशिएंट जो कल्चर है ना वो बहुत ग्रेट है एंड हम केपेबल है किसी भी बड़े उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपने समाज को सुधारना पड़ेगा. दैट इज फर्स्टली वी हैव टू रिफॉर्म आवर सोसाइटी. सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस. क्योंकि जो अंधविश्वास है ना वो धीरे धीरे हमें क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है. Now he says he told his wife Uma. उन्होंने अपनी वाइफ उमा से क्या कहा? Cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Okay. Now, different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. Now he says, वो अपनी वाइफ से क्या बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, गाय सब अलग अलग कलर की होती है ना. गाय कैसी होती है? सब गाय अलग कलर की होती है, राइट. बट अगर दूध की बात करें तो दूध तो सभी गाय का सेम कलर का होता है. ठीक है. क्या दूध में कभी कोई फर्क हुआ है किसी भी गाय के? नो. मिल्क कैसी भी गाय कैसी भी हो, गाय ब्लैक हो, गाय व्हाइट हो, गाय कैसी भी हो, द मिल्क इज ऑफ विच कलर? व्हाइट. सो ये सेज कि डिफरेंट डिफरेंट जो टीचर्स है ना उनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं बट एसेंस क्या है हर रिलीजन का? सेम. ठीक है. तो अलग अलग धर्म जो है वो अलग अलग गुरुओं के विभिन्न प्रकार के विचार हैं पर धर्म का अगर हम सार निकालते हैं ना तो वो बिल्कुल सेम है. Now he was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. The next pic you can see. Now वो बहुत attracted थे by what? He was very much attracted by ज्ञान. ज्ञान जिसको हम बोलते हैं क्या होता है वो? knowledge and विज्ञान that is technology. तो वो टेक्नोलॉजी और नॉलेज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे. एंड ही सेज कि जो नॉलेज है ना वो कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक. दैट इज उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए एंड बी साइंटिफिक एंड उसे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी होना चाहिए. व्यवहारिक और जो आपकी वैज्ञानिक होगी ना अगर आपकी नॉलेज तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट थिंग. तो वो बहुत ही अच्छी होने वाली है. ठीक है. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. Now अब इसी चीज के लिए वो कहाँ गए? He went over the seas. उन्होंने seas cross किया and he went to England. और वो इंग्लैंड चले गए ये देखने के लिए कि भाई ये ब्रिटिशर्स ऐसा क्या करते हैं जो कि वो इतने पावरफुल है.
व्हाट डज दे डू, ऐसा भी उन्होंने क्या किया कि वो इतने पावरफुल हो गए? So now he started newspaper, but the suspicions British stopped them in 1823. अब क्या हुआ, हमारे जो राम मोहन रॉय थे उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया सो दैट कि पीपल तक सारी खबरें पहुंच सके, बट टू बी वेरी फ्रैंक ब्रिटिशर्स थे, दे वर सो पावरफुल कि उन्होंने उसके पेपर को स्टॉप कर दिया इन 1823. नाउ आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया कि आई शुड गो टू इंग्लैंड एंड सी व्हाट इज इट, ऐसी क्या चीज है जो इन ब्रिटिशर्स को इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बनाती है। वहां उन्होंने उनको क्या बताया, वेयर ही टोल्ड देम वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। ना उन्होंने वहां जाके उनको कहा हम आपको अपने रूलर के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको भी हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, बट आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आप अगर एक रूलर हो ना और हम आपके अगर बच्चे हैं, दैट इज हम आपकी प्रजा हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप हमारी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। सो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक रूलर अपने सब्जेक्ट्स के प्रति क्या करता है, ओ करता है। ओ मीन्स वो समझता है, ये उसकी ड्यूटी है दैट ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट्स सब्जेक्ट, टुवर्ड्स हिज पीपल। तो ये बात जो थी राम मोहन रॉय सेड इन व्हेन ही वेंट इन इंग्लैंड टू द पीपल ऑफ द इंग्लैंड. Okay, so this was the fourth glimpse. Now the fifth glimpse is here. Now see, but the British continues to oppress the Indians. In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. Now ये जो हमारा फिफ्थ ग्लिम्स है ना, ये किस चीज के बारे में है? ऑपरेशन. ऑपरेशन आप समझते हो हिंदी में जिसे हम बोलते हैं अत्याचार, ठीक है? और सेकेंडली उसको हम उत्पीड़न भी बोल सकते हैं, बट अत्याचार इज अ वेरी कॉमन वर्ड एंड दैट आई थिंक आप समझोगे कि क्या ब्रिटिशर्स के अत्याचार थे हम इंडियंस पे. सो सी, बट ब्रिटिश जो थे कंटिन्यूड टू ऑपरेस द इंडियंस. इन 1818 उन्होंने पास किया रेगुलेशन 3. अंडर इट एक इंडियन जो था कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, बिना ट्रायल के इन द कोर्ट, ठीक है? मतलब बिना कोई पूछे, बिना किसी ट्रायल के इन द कोर्ट. अल्टीमेटली तो जेल जाने की सजा कौन देता है? कोर्ट देता है ना. यहाँ पे कोर्ट ने उनको कोई सजा नहीं दी, बट क्या हुआ यहाँ पे, ब्रिटिश जो थे उन्होंने कंटिन्यूसली इंडियंस को ऑपरेस किया एंड इन 1818 उन्होंने एक रेगुलेशन, एक रूल पास कर दिया सा रेगुलेशन 3, जिसके अंदर किसी भी इंडियन को पकड़ो बिना कोर्ट में किसी ट्रायल के उसको पकड़ो और जेल में डालो. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business. And all the time, जितने भी British officials थे इंडिया में, वो big salaries लेते थे, ठीक है? And प्राइवेट बिजनेस भी सबने अपने अपने खोल रखे थे एंड उसमें भी वो लोग बहुत फॉर्च्यून्स, मतलब बहुत प्रॉफिट्स अर्न करते थे. By 1829, British was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. By 1829 जो ब्रिटिश थे ना, they were exporting the British goods worth 7 करोड़ के करीब का रुपीस टू इंडिया, ठीक है? कितना गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे वो? ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया. The British proposed on the company's loot while Indians industries began to die. ब्रिटिश ने प्रपोज किया that on the company's loot while Indian industries began to die. अब वो तो क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनीज ने तो ऐसी लूट मचा दी, बट जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी दे जस्ट डाइड. वो एक एक करके दे जस्ट स्टार्टेड फिनिशिंग, एंडिंग अप. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. अब गवर्नर जनरल बेंटिक जो थे ही जस्ट रिपोर्टेड बैक होम, वो वापस गए. द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग the plains of India. And now we can say कि जो bones थे ना the cotton weavers, कहने का मतलब cotton industry was so much deprived that it was just on the verge of the closure. तो बेचारे जो cotton weavers थे ना, they were just bleaching in the sense they were just bones, flesh नहीं बचा था उनके, because of starvation, because of all the things, they were just, we can say कि वो कैसे हो गए थे, they were just bleaching, दिखाई दे रही थी उनकी bones, उसके ऊपर just a layer of skin was seen. बिल्कुल ऐसे वो पतले पतले से और इतने परेशान, उनकी हड्डियां जो थी ना ऐसा लग रहा था दैट ये जो हमारी भारत भूमि है ना इसको ब्लीच करने का काम उनकी बोन्स कर रही थी.
और कुछ भी नहीं। हमारी इस भूमि को कौन सींच रहा था? द ब्लीचिंग और द बोन्स ऑफ दिस कॉटन वीवर्स। सो इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पे इनकी हो गई थी। ठीक है, सो दिस वाज द ऑपरेशन एंड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन। जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर अत्याचार किए ना, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ वन इज डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन आपको पता है क्या होता है? असंतुष्टता। जब इंसान संतुष्ट नहीं होता तो वो क्या होता है? असंतुष्ट हो जाना। नाउ 18, ये वाला ग्लिम्स कौन से ईयर्स का है? 1835 to 56। ओके, फ्रॉम 1835 to 56। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 एक इंग्लिश मैन जो नेम्ड थे मैक्यूले, उन्होंने सजेस्ट किया एक चेंज। Now, education in India was in Persian and Sanskrit. इंडिया में जो एजुकेशन थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी? पर्शियन में एंड संस्कृत में। एंड इन 1835 एक इंडियन मैन, इंग्लिश मैन थे जिनका नेम क्या था? मैक्यूले। उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया और उन्होंने क्या बोला? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें नेटिव्स को कौन सी लैंग्वेज के थ्रू टीच करना है? इंग्लिश लैंग्वेज। अदर वन सेज यस आई एग्री। तो ये पर्शियन संस्कृत सब हटा दो और चाहे ये इंडियंस हैं, टीच देम इंग्लिश। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them। अब इंग्लिश एजुकेशन ने कुछ क्लर्क्स की जॉब्स को प्रोड्यूस किया जो क्या करते थे, जिनको ब्रिटिशर्स बहुत ही पिटी जॉब्स देते थे अपने अंडर, बहुत ही छोटी मोटी सी नौकरियां। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। एंड इंसिडेंटली इसने क्या प्रोड्यूस किया? a new generation of what? Of intellectuals। We must educate our brothers। हमें अपने brothers को क्या करना है? Educate and try to improve their material conditions। And we should try कि हम क्या improve कर सकें? Their material conditions। For this we must convey our grievances to the British Parliament। The people are saying कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी परेशानी कहाँ लेके जानी पड़ेगी? To the British Parliament। So we must educate our brothers। Now the people are saying कि हमें सबको educate करना चाहिए, हमें अपनी material conditions को improve करना चाहिए और इसके लिए हमें अपनी परेशानी कहाँ लेके जानी पड़ेगी? To the British Parliament। So by 1856 जो British थे had conquered। ब्रिटिश ने क्या किया? कॉन्कर किया द होल ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया। ठीक है, नाउ दे केयर्ड लिटिल अबाउट। ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा इंडिया कॉन्कर कर लिया। नाउ दे लिटिल दे केयर्ड अबाउट। आप देख सकते हो पूरा ब्रिटिश एरिया पिंक वाला एंड द स्टेट्स इन द येलो। ओके, सो दीज ऑल हैव बीन कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश पीपल। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। उन्होंने इंडियंस की नीड के लिए ना बहुत कम परवाह की, बिकॉज अल्टीमेटली उनका तो एम एक ही था ना, इंडियंस को ऑप्रेस करना। So now what happens? Our kings have become puppets and we have lost our old jobs। Now हमारे kings ने क्या किया है? They have made us our puppets of their hand। And puppets you must have seen कठपुतली, जिसको जैसा चाहो आप मूव करा सकते हो। So the same thing happens here that हमारे kings ने क्या किया? They have made ourselves, हमें अपना puppet बना लिया and we have lost our old jobs। और उसकी वजह से हमारी ओल्ड जॉब्स चली गई एंड हमें वो जॉब्स करनी पड़ी, दोज पिटी जॉब्स जो हमें किसने दी? जो हमें इन ब्रिटिशर्स ने दी। दे हैव कन्वर्टेड आवर एंड लैंड्स, और हमें अपनी जॉब्स के साथ अपनी लैंड्स भी देनी पड़ गई। दे हैव कन्वर्टेड आवर ब्रदर्स, और उन्होंने हमारे बहुत से ऐसे ब्रदर्स थे जिनका क्या किया? उन्होंने उनका कल्चर चेंज करवा दिया। दे हैव कन्वर्टेड देम टू देयर पीपल। You only talk, do something to drive them about। अब एक बहुत बड़े से यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, एक महात्मा जैसे एक व्यक्ति हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठ के। So there is a normal person and उस normal person ने क्या बोला? तुम सिर्फ बैठे बैठे बातें करो, कुछ करो भी तो। खाली बोलने से क्या होगा? Do something to drive them out। इन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ करो, खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। You should do something and then only they are going to be out of our society। Yes, students, so now we move to the seventh glimpse, that is, the name is given the Sparks। It's from 1855 to 57। ये जो Sparks है, Sparks का मतलब समझते हो? Spark मतलब चिंगारी। Now it's about the चिंगारी। क्या है चिंगारी के बारे में? Let us see। टाइम पीरियड क्या है इस ग्लिम्स का? 1855 to 1857। Now just see, taxes continued to ruin the peasants।
In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules become desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred European and their supporters alike. अब क्या हुआ, जो टैक्सेस थे ना उसने रुइंस कर दिया किसको, हमारे पीजेंट्स को बर्बाद कर दिया, किसानों को। बंगाल के अंदर संथाल लोग जो थे, संथाल वाज अ ट्राइब बेसिकली, बंगाल के अंदर जो संथाल ट्राइब थी, जो कि हम बोलेंगे जो इस न्यू ये जो लॉ फॉर्मेशन हुई ना, न्यू लैंड रूल्स जो आए उसके अंतर्गत वो लोग क्या हुआ, वो अपने बेचारे अपनी सारी लैंड खो चुके थे एंड वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, हताश थे वी कैन से। सो इन 1855 उन्होंने क्या किया, दे जस्ट प्रोटेस्टेड, उन्होंने एक रिबेलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया एंड यूरोपियन पीपल का कत्लेआम कर दिया। दे हैव जस्ट मैसेकर्ड, मतलब कत्लेआम किनका, यूरोपियन पीपल का। एंड जो उनके सपोर्टर्स थे उनका भी यही हाल कर दिया। ठीक है, जो यूरोपियंस के सपोर्टर्स थे उनको भी उन्होंने मार डाला, ऐसी हालत कर दी। यू कैन सी इन द ग्लिम्स कैसे कत्लेआम हो रहा है, पीपल किलिंग ईच अदर, किस तरीके से वो मार रहे हैं उनको। नाउ discontent was brewing in the East India Company army too. The white soldiers get huge pay mentions to live in servants, while we get a pittance and a slow promotion. The Angrez ask us to cross the seas, which is against our religion. Who is the Topiwala to abolish our age-old customs? We must drive out the Angrez. Now, Sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. Now, ये जो discontent था ना ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो सेना थी उसमें क्या हो रहा था, असंतोष बढ़ रहा था। Now people were having different views. Now some people were saying कि ये जो white है ना, जो गोरे सैनिक है, ये भारी भरकम वेतन ले रहे हैं, रहने को बहुत विशाल घर मिल रहे हैं और इन्हें नौकर चाकर भी मिलते हैं। बट हमें क्या मिलता है, व्हाट आर वी गेटिंग, बहुत ही थोड़ा सा वेतन मिल रहा है, बहुत ही धीमी सी प्रमोशन, बहुत ही हल्की फुल्की सी स्लो प्रमोशंस मिलते हैं हमें। ये जो अंग्रेज है ये हमें समुद्र पार करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है। ये टोपी वाले होते कौन है, जो हमारी युगों पुरानी परंपराओं का उन्मूलन करने वाले और उनको बदलने वाले। हु आर दे, हमें इन अंग्रेजों को अवश्य ही यहाँ से क्या करना है, बाहर निकालना है। वी मस्ट ड्राइव आउट दी अंग्रेज। नाउ सिपाही जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपनी रेजिमेंट के सैन्य अफसर्स जो थे, मतलब जो एडजुटेंट थे उनकी रेजिमेंट के साथ में, ठीक है, सैन्य अफसर पर हमला कर दिया, क्या आक्रमण कर दिया, और उसके बाद में उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें फांसी लगा दी गई बिकॉज ऑफ द एक्ट ही डिड। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniform, humiliated and put in irons. और भी हजारों सिपाहियों ने भी इसका विरोध किया, उनकी भी यूनिफॉर्म्स उनसे ले ली गई। They were stripped of their uniforms. उन्हें बहुत ह्यूमिलिएट किया गया, उनका अपमान किया गया, उनके भी बेड़ियां डाल दी गई। That is, they were put in the irons. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullets you have bite is made from the fat of cows and pigs? What the white man have deceived us to. Now, here further वो क्या बोलता कुछ अंग्रेज जो थे, some Englishmen, they have just cared, उन्होंने ही सिर्फ परवाह की, दिमाग में लोगों के मस्तिष्क को जानने की, परंपराओं को जानने की, या लोगों के दिमाग को, लोगों के थॉट्स को जानने की, वी कैन से उन्होंने थोड़ा सा पेन लिया। ठीक है, नाउ ही सेज, ओ पुअर प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि जो आप बुलेट्स जो आप लेते हो, जिसको आप अपने मुंह से बिट बाइट करते हो, उसको थ्रो करने से पहले उसके ऊपर जो ग्रीस है वो किसका है, द ग्रीस इज ऑफ फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। Now Brahmin says क्या? Now the other one says कि ये जो white people है, they have deceived us too. इन बुरे लोगों ने भी हमें धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from the village. Now next glimpse क्या है? Soon the chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service. Now बहुत जल्दी ही क्या हुआ, चपातीस भेजी गई from village to village, एक village से दूसरे village। ठीक है, सिर्फ किस लिए, टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, कि उनके जो एम्परर है, उनके जो सम्राट है, उन्हें उनकी सेवाएं चाहिए।
Yes, all my village men, we will be ready. Now he says, हाँ मेरे गांव के सभी व्यक्ति तैयार रहेंगे, मुझे पता है. Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers. और इंडियन सोल्जर्स ने क्या सर्कुलेट किया अपने बीच में? कमल के फूल बांटे. क्या बांटे? कमल के फूल. डेथ टू द फॉरेनर्स. एंड नाउ दिस सेज कि विदेशियों को मृत्यु दी जाए. The masses gave all the help and shelter to the patriots. And जितने भी जन साधारण लोग थे ना, जितने भी पीपल थे, वो राष्ट्रभक्तों को जितनी भी सहायता दे सकते थे, जितनी भी शरण दे सकते थे, शेल्टर दे सकते थे, उन्होंने वो सब उनको दिया. ठीक है. दे हैव गिवन दिस एवरीथिंग टू देम. और उन्होंने इसमें बिल्कुल भी डिनायल नहीं दिया. स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल. ओके, फाइन. Finally, अब हम इसको कल कंप्लीट करेंगे. We'll complete the rest of the glimpses in tomorrow's class. Till then, you just go through them. If there are any doubts, you can let me know. Okay? So take care of yourselves and we'll be meeting tomorrow. Bye-bye.